Next, the dynamic test measuring the accuracy with which all the blade edges passes through a single point when the instrument is rotated is said to be what? It is said to be run out. इसको क्या बोलते हैं? Run out बोलते हैं. Run out is a dynamic test measuring the accuracy with which all the blade edges pass through a single point when measured in the instrument when the instrument is rotated. It measures only the concentrically of the head, but also the accuracy with the center of rotation which is passing through the center of the head. Even a perfect concentric head exhibits substantial runout. If the head is not centered precisely, the long axis of the burr and the neck of the burr, it gets bent. The burr is not held straight in the handpiece chuck, or the chuck is eccentric relative to the handpiece bearing, and the runout can never be less than concentrically, and it is usually substantially greater. Runout का बेसिक मतलब है कि अगर बर थोड़ा सा भी बेंट कर गया है, जब वो घूमेगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, उससे जो बर है उसका नेक ही बेंट कर जाएगा. उसको बोलते हैं रनआउट. कि कितना एक एज जो है वो एक सर्कल से बाहर को है, कितना वो मास बाहर को खिंचवा रही है. ठीक है, दैट इज नोन एज रनआउट. नेक्स्ट, रोटेशनल स्पीड्स ऑफ अ रोटरी पावर्ड कटिंग इंस्ट्रूमेंट अमाउंटिंग बिटवीन 12,000 to 2 लाख आरपीएम आर कैटेगराइज्ड एज व्हाट? 12,000 आरपीएम से लेकर 2 लाख आरपीएम तक. ठीक है, ये स्पीड आती है हमारी मीडियम स्पीड. द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज रिपोर्टेड इन आरपीएम. द 3 रेंजेस आर जनरली कैटेगराइज्ड. सबसे पहले आता है लो स्पीड. लो स्पीड या फिर स्लो स्पीड उसको बोलते हैं. उसमें लेस देन 12,000 आरपीएम की अपनी स्पीड रहती है. मीडियम से इंटरमीडिएट स्पीड, मीडियम से इंटरमीडिएट स्पीड जो होती है वो 12,000 आरपीएम से लेकर 2 लाख आरपीएम तक जाती है. और अल्ट्रा हाई स्पीड जो होती है, हाई स्पीड जो होती है, दैट इज ग्रेटर देन 2 लाख आरपीएम. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट ग्रास्प्स आर मोस्टली फॉर टूथ प्रिपरेशन एम्प्लॉइंग द लिंगुअल अप्रोच ऑन द एंटीरियर टीथ? लिंगुअल अप्रोच ऑन द एंटीरियर टीथ अगर आप कर रहे हो तो आपकी इन्वर्टेड पेन ग्रास्प आएगी. ऑलराइट, यू विल हैव एन इन्वर्टेड पेन ग्रास्प इफ यू गोइंग फॉर द लिंगुअल अप्रोच ऑन द एंटीरियर टीथ. द फिंगर पोजिशन ऑफ द इन्वर्टेड पेन ग्रास्प, they are same for modified pen grasp as well. The hand is rotated, however, the palm is facing towards the operator. This grasp is mostly for tooth preparations employing the lingual approach on the anterior teeth. The modified pen and inverted pen grasps are primary grasps that are used in preparation and direct restoration of the teeth. Next, which of these gingival marginal trimmer instruments are used to remove unsupported enamel on the mesial gingival wall of the preparation? अनसपोर्टेड एनामल को रिमूव करने के लिए आपको सेकंड नंबर को चेक करना होता है. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट फार्मूला इज ऑन द हैंडल बिटवीन 75 to 85. सेकंड नंबर जो होगा वो बिटवीन 75 to 85 होगा इन द इंस्ट्रूमेंट फार्मूला. gingival marginal trimmer, it is similar in design to the enamel hatchet except that the blade is curved and the primary cutting edge is at an angle other than the perpendicular angle to the axis of blade. It is made as the right and left types. जो GMT होता है वो right और left type का GMT हो सकता है. The gingival marginal trimmer may be designed to afford access to mesial or distal gingival walls. When the second number in the instrument formula is found on the handle, that is 90 to 100. जो सेकेंड नंबर है इंस्ट्रूमेंट फार्मूला के अंदर वो 90 से 100 के बीच में है, तो पेयर इज यूज्ड ऑन द डिस्टल जिंजाइवल प्रिपरेशन वॉल. ठीक है, जीएमटी जो है वो यूज़ किया जाएगा ऑन द डिस्टल जिंजाइवल प्रिपरेशन वॉल अगर 90 से 100 के बीच में इंस्ट्रूमेंट फार्मूला है. व्हेन द नंबर इज बिटवीन 75 to 85, द पेयर इज यूज्ड टू रिमूव द अनसपोर्टेड एनामल ऑन द मीजियल साइड. 75 to 85 अगर हमारे पास जीएमटी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे फार्मूला के अंदर, तो वो अनसपोर्टेड एनामल ऑन द मीजियल साइड उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होगा. ठीक है, ऑन द mesial wall of preparation. Next, which of these hand instruments are not called an excavator? देखो, spoon is an excavator, angle formator is an excavator, hoe is an excavator, but gingival marginal trimmer, it is not an excavator. 4 subdivisions of excavator are there: ordinary hatchet, hoe excavator, angle former and spoon. Gingival marginal trimmer, it is a form of chisel. GMT जो होता है that is a form of chisel. Okay. Next, the image shown below shows a finishing knife that is used in dentistry. Alright, ये एक finishing knife है, cutting knife है. Alright, the shank of this instrument is what? इसका जो shank है वो कितने एंगल का shank है? देखो इसमें एंगल गिनने आपने, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल. इट इज़ नोन एज ट्रिपल एंगल शैंक इंस्ट्रूमेंट. कितने एंगल का है ये? ट्रिपल एंगल शैंक इंस्ट्रूमेंट है. द इमेज शोज फिनिशिंग नाइफ विद द ट्रिपल एंगल शैंक इंस्ट्रूमेंट. देखो हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं. एक हमने ट्रिपल एंगल वाले की बात की, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल. जो कटिंग है जो उसको नहीं गिना जाता है, उसको नहीं गिना जाता है. ये हमारे पास आ गया ट्रिपल एंगल. 2 एंगल है अगर इसके पास तो इट विल बी नोन एज बिन एंगल. और स्ट्रेट प्रोब है, अगर सीधा एंगल जा रहा है, एक ही एंगल बेंड कर रहा है, तो इट इज़ नोन एज सिंगल एंगल और मोनो एंगल. ठीक है, मॉन एंगल बोलते हैं, MON एंगल बोलते हैं. 2 वाले को बिन एंगल बोलते हैं और उससे ज़्यादा ट्रिपल एंगल वाले को ट्रिपल एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट, अ बाइट विंग रेडियोग्राफ शोज मैक्सिलरी मोलर विद अ ट्रायंगुलर रेडियोलुसेंसी.
मैक्सिलरी मोलर के ऊपर आपको यहाँ पे ट्राइंगुलर रेडियोलोसेंसी दिखाई दे रही होगी इसके अंदर. ऑलराइट, नाउ just beneath the contact area, the outer enamel's surface appears intact clinically. There is no cavitation or surface roughness. The patient is a 28-year-old male with good oral hygiene. No history of recent caries is there. Normal salivary flow is there, and there is regular fluoride exposure. सारी चीज़ें हमारी अच्छी की तरफ ही है. Alright. Based upon summit principles of caries detection, lesion activity, and patient-based risk assessment, the most appropriate diagnostic interpretation and management of this lesion will be what? तो यहाँ पे lesion is most likely to represent an active non-cavitated lesion क्योंकि इसका surface बिल्कुल ठीक है. Proximal caries that should be managed with a non-operative preventive therapy rather than immediate cutting with the burr and immediate restoration. ठीक है. Radiographic radiolucency beneath the contact area indicates that the lesion has crossed the dentino-enamel junction and is spreading laterally within the dentine. However, Summit emphasizes that the operative treatment is not based upon the radiographic depth alone. क्योंकि यहाँ पे कोई cavitation नहीं है, patient has low caries risk and there is surface is clinically intact and smooth. So there is no need for opening the lesion. The lesion can be arrested by the use of remineralization with fluoride, plaque control and dietary modifications rather than immediate drilling. Next, the ideal depth of initial occlusal cavity preparation is determined by what? Ideal depth of initial occlusal cavity preparation, it is determined by the position of DEJ. The first step in the tooth preparation is to establish the initial depth and then at the initial depth extend the walls of the preparations until the junction between the dentino-enamel junction that is supporting the dentine is uncompromised. एक साउंड DEJ, एक साउंड dentino-enamel junction हमें अचीव करना ही करना है. That is our goal. Here the peripheral walls determine the outline, overall outline of the preparation which is referred to as the outline form. It is essential that the outline form is to be visualized, that is it is mentally anticipated that कि आपको outline form जो है visualize करके ही दांत की कटिंग करनी है. Alright, as much as possible before any mechanical alteration to the tooth has begun. The initial depth of the preparation is 0.2 mm internal to the dentino-enamel junction or 0.8 mm internal to the normal tooth surface. Next, the primary purpose of retention form is to do what? Primary purpose of retention form is to prevent displacement of the restoration. Primary purpose of retention form is to prevent displacement of the restoration. The primary retention form is the shape or the form of the preparation that prevents the displacement or removal of the restoration by tipping or lifting forces. ठीक है. In many respects, the retention form and the resistance form they are accomplished at the same time. Okay. मतलब रेजिस्टेंस फॉर्म और रिटेंशन फॉर्म आप एक ही कटिंग में अचीव करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम के नंबर केसेस में. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई रेडियोग्राफ्स फ्रीक्वेंटली अंडर एस्टिमेट द प्रॉक्सिमल केरीज. देखो, रेडियोग्राफ जो होता है वो तब हम की केरीज को दिखाना शुरू करता है जब आपकी केरीज में जो है 500 माइक्रोमीटर तक का प्रिज्म का लॉस हो गया हो, कोर का लॉस हो गया हो. कोर प्रिज्म्स होते हैं ना, जो इनामल के कोर प्रिज्म्स हो गए, जब 500 माइक्रोमीटर तक वो लॉस होने, पहले मैंने नैनोमीटर बोला होगा, माइक्रोमीटर तक का जब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तब हमारी रेडियोलुसेंसी दिखाई देगी. रेडियोग्राफिक डिटेक्शन ऑफ द केरीज डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन द मिनरल डेंसिटी एंड नॉट ऑन द मियर प्रेजेंस ऑफ द डिजीज. तो अ प्रॉक्सिमल लीजन मस्ट अंडरगो अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द मिनरल लॉस. कितना? 25%. मतलब 75% बचा होना चाहिए, 25% का लॉस हो जाना चाहिए बिफोर इट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट रिडक्शन इन एक्सरे एक्टिवेशन टू अपीयर ऑन द रेडियोग्राफ. ठीक है, मतलब रेडियोग्राफ पे अपीयर करेगा एज अ रेडियोलुसेंसी. लगभग 25% का लॉस होगा, उसके बाद ही करेगा. एज अ रिजल्ट, अर्ली इनामल एंड इनिशियल डेंटिनल केरीज मे बी क्लिनिकली प्रेजेंट, येट रेडियोग्राफिकली दे कुड बी इनविजिबल, लीडिंग टू अ फॉल्स नेगेटिव फाइंडिंग्स एंड कंसिस्टेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ द लीजन डेप्थ एंड एक्सटेंट वी कैन डू. ठीक है, दिस इनहेरेंट लिमिटेशन एक्सप्लेन्स व्हाई ऑफन it appears as less extensive on the radiographs than they are clinically, reinforcing the principle that radiographic findings must always be interpreted in conjunction with the visual and clinical examination rather than an isolation. ठीक है. Next, a radiolucency appears on the medial surface of molar on the bite wing but disappears on the repeated radiograph with altered horizontal angulation. This indicates what? इसका मतलब है कि फेशियल या लिंगुअल साइड पे जो आपका नॉर्मल डेंटिन है या नॉर्मल हेल्दी इनेमल है उसने उसको ओवरलैप कर लिया दूसरे वाले एक्सरे में. ठीक है. डेंटल रेडियोग्राफ्स आर ऑफ 2 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. 3D स्ट्रक्चर की 2D इमेज हम ले रहे हैं, मेकिंग them prone to superimposition artifacts. A facial or lingual caries lesion
or a radiolucent tooth colored restoration may be projected over the proximal surface, falsely mimicking the proximal caries. कह रहा है कि अगर बायोडेंटीन जैसा मटेरियल लगाया गया है जो कि डेंटीन को थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन उससे थोड़ा कलर डिफरेंट आएगा रेडियोग्राफ पे उसका, तो वो एक फॉल्स केरीज की तरह सुपर इम्पोज अगर हो जाती है तो वो दिखाई दे सकती है एज एन आर्टिफैक्ट. दीज आर आर्टिफैक्ट्स. तो व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन इज ऑल्टर्ड, द पोजीशन सच एज, जो ऐसी पोजीशन आई है वो स्लॉब रूल से चेंज कर जाती है. मतलब सेम साइड पे आपका लिंगुअल साइड आ गई और ऑपोजिट साइड जो है दैट विल बी बकल. इफ द रेडियोलुसेंसी moves relative to the tooth surface or disappears entirely on repeated radiograph, it confirms that the lesion is located on the facial or the lingual surface, not proximally. अगर आपकी एंगुलेशन चेंज करके आपकी रेडियोलुसेंसी गायब हो जा रही है तो मतलब है कि लीजन या तो फेशियली है या तो लिंगुअली है, प्रॉक्सिमली लोकेटेड नहीं है. अगर प्रॉक्सिमल में पूरा लोकेटेड होगा तो वो दोनों साइड की एंगुलेशन में आपकी बराबर रेडियोलुसेंसी आएगी. Alright, this phenomena explains why such findings represent a false positive diagnosis, and it highlights the importance of angulation changes and clinical correlation in radiographic interpretation. Next, which optical systems are commonly used in binocular dental loops? Binocular dental loops में you have Galilean and prismatic optical loops. ठीक है, binocular dental loops commonly use Galilean and prismatic or Keplerian based optical system. Galilean loops are typically used for lower to moderate magnification, while the prismatic loops are employed for higher magnification, offering improved image quality, resolution. Their optical design allows simultaneous binocular viewing, improving depth perception and compatibility with the prescription lenses. Diopter and the Fresnel lenses are example of biomagnifiers and are not used in modern binocular loops. Next, restoration is placed on the maxillary central incisor. Restoration placed on maxillary central incisor appears bluish gray in the incisal edge when viewed intraorally, while transmitting warmer hues when light passes through it. This optical behavior is due to enamel property in which short wavelengths are reflected and the longer wavelengths are transmitted. Which of the following optical phenomena is best explaining the phenomena? Answer है opalescence. ठीक है, opalescence is a characteristic optical property of enamel resulting from differential scattering of light within the enamel phases. ठीक है, that have different refractive index. इसमें दो तरह की वेवलेंथ आ जाती है, या तो शॉर्ट वेवलेंथ आ जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ आ जाएगी. शॉर्ट वेवलेंथ अगर प्रेफरेबली अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ब्लू कलर का ह्यू आ जाता है, मतलब ब्लू कलर पर दिखने स्टार्ट हो जाती है रेस्टोरेशन. अगर लॉन्गर वेवलेंथ जैसे कि रेड या ऑरेंज है वो ट्रांसमिट हो रही है तो उस कलर का हमारा जो है रेस्टोरेशन दिखना शुरू हो जाएगा. द सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन प्रोड्यूसेस अ ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ द इंसाइजल एज, स्पेशली व्हेन viewed against the dark background of the oral cavity. Opalescence also contributes significantly to the depth or vitality and the natural appearance of the teeth, particularly in the incisal third. It is important to distinguish opalescence from fluorescence, iridescence and translucency. Fluorescence का मतलब होता है कि emission of light under ultraviolet radiation. अगर यूवी रेडिएशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं एमिशन ऑफ लाइट को तो वी विल कॉल इट एज फ्लोरेसेंस. इरिडिसेंस क्या होता है कि विच प्रोड्यूसेस एंगल डिपेंडेंट रेनबो कलर्स एंड नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल टीथ. एंगल डिपेंडेंट रेनबो कलर्स होते हैं, जैसे कि पानी में तेल डालोगे तो अलग अलग कलर के एक पूरा शेड बन जाता है, एक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है पानी के अंदर तेल जब ड्रॉप करते हैं, वो होता है इरिडिसेंस. दैट इज प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इन द नेचुरल टीथ. नेचुरल टीथ में आपको रेनबो के कलर के दांत थोड़ी दिखाई देते हैं. फिर आती बात ट्रांसलूसेंसी के बारे में. ट्रांसलूसेंसी इज विच रेफर्स टू ओनली दैट लाइट ट्रांसमिशन विदाउट द वेवलेंथ डिपेंडेंट कलर इफेक्ट्स. Light transmission without the wavelength dependent color effects. Therefore, the optical phenomena responsible for the blue reflection with red-orange transmission in enamel is called as opalescence. Next, a single maxillary central incisor is being restored with all ceramic crown. The clinician wants maximum accuracy with minimum subjectivity. The best shade matching approach is what? Best shade matching approach होती है that is spectrophotometer based shade analysis. In aesthetically critical situations such as single anterior tooth replacement, shade matching जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. It should be highly accurate, it should be highly objective, and it should highly be reproducible. Spectrophotometers measure a full spectral reflectance of natural teeth and provide precise numerical values for hue, chroma and value. ठीक है, मतलब एक डेफिनेट वो नंबर दे देगा आपको ह्यू, क्रोमा और वैल्यू का. बिकॉज दे एनालाइज द एंटायर रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर नॉट लिमिटेड टू सिलेक्टिंग द नियरेस्ट शेड टैब. They are capable of interpolating between the shade tabs, allowing accurate shade matching when the tooth color lies between the standard shade guide values. इसके बाद आता है colorimeter. Colorimeter in contrast rely on preloaded shaded systems and usually identify only the closest shade tab, making them less accurate. विजुअल शेड गाइड जो होती है जैसे कि कैमरा बेस्ड मेथड होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी, फटीग एंड लाइटिंग कंडीशंस एंड दे हैव परसेप्चुअल एरर. अगर आप कोई चीज़ देख के आप देख रहे हैं, एक और ऑब्जर्वर देख रहे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग चीज़ दिखाई देगी, तो वैल्यू चेंज कर जाती है वहाँ पे.
आपको कौन सा शेड चाहिए वो चेंज कर जाता है. Therefore, spectrophotometer based shade analysis provides the highest accuracy of minimum subjectivity, making it the preferred method. तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेते हैं जिससे कि फुल स्पेक्ट्रल एनालिसिस आता है प्लस इंटरपोलेशन कर देते हैं कि कितनी वैल्यू हमारी आई है, वही हाईएस्ट एक्यूरेसी हमें देगा. ठीक है. कॉलरीमीटर एक सिर्फ शेड टैब होता है. ठीक है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम अगर हमें मिल रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो. नेक्स्ट, विच ऑप्टिकल फिनोमेना इज एब्सेंट इन नेचुरल टीथ. अभी हमने पीछे बात की थी कि इरिडिसेंस जिसमें कि रेनबो कलर का एक कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वो एब्सेंट होता है इन द नेचुरल टीथ. ठीक है. नेक्स्ट, रिगार्डिंग 8th जनरेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट्स कंटेनिंग नैनोफिलर्स. 8th जनरेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट में नैनोफिलर प्रेजेंट है. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखो, जितने ज़्यादा नैनोफिलर्स प्रेजेंट होंगे उतनी पेनिट्रेशन और हाइब्रिड लेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है. एक्सेस अगर फिलर का साइज होगा दैट इज ग्रेटर देन 15 to 20 नैनोमीटर तो उसमें सरफेस क्रैक फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. फिलर का साइज बड़ा होगा तो सरफेस क्रैक फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगा. हाइड्रोफिलिक एसिडिक मोनोमर्स अलाउ यूज ऑफ मॉइस्ट एनामल सरफेसेस. ये भी सही स्टेटमेंट है. ठीक. गलत स्टेटमेंट क्या है कि इंक्रीज नैनोफिलर कंटेंट यूनिफॉर्मली इंप्रूव्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो ये गलत स्टेटमेंट है. देखो, जितना ज़्यादा नैनोफिलर बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉम्प्रेशन ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा आफ्टर द क्योरिंग. एक्सेस नैनोफिलर कंसंट्रेशन दैट इज ग्रेटर देन 1% और लार्जर पार्टिकल साइज में लीड टू एग्लोमरेशन. क्या हो जाएगा? एग्लोमरेशन हो जाएगी, सरफेस डिफेक्ट्स आ जाएंगे एंड देयर विल बी क्रैक इनिशिएशन रादर देन इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज. ऑलराइट. क्रैक इनिशिएशन होता है रादर देन द इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग एडहेसिव इज फॉल्ट. देखो, ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सी इस एडहेसिव के लिए. ये सेल्फ एच आपको एक बॉन्डिंग सिस्टम का इमेज दे रखा है. तो बेसिकली इट इज़ एन एचिंग, प्राइमिंग एंड बॉन्डिंग अकरिंग इन अ सिंगल क्लिनिकल स्टेप. मल्टीपल कोट्स इसमें लगा सकते हो आप. दे आर ऑफन रिकमेंडेड टू इंप्रूव द बॉन्ड परफॉर्मेंस. दे एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आफ्टर पॉलीमराइजेशन. मल्टीपल कोट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन. ऑलराइट. ये लेकिन ये सुपीरियर नहीं होता, इसकी बॉन्ड ड्यूरेबिलिटी सुपीरियर नहीं होती एज कम्पेयर टू 2H और सेल्फ एच सिस्टम्स. ठीक है. मतलब 7th बॉन्ड जनरेशन एडिसिव्स दे शो लोअर बॉन्ड ड्यूरेबिलिटी, हायर वाटर परमिएबिलिटी एंड फेज सेपरेशन एज कम्पेयर टू द 2 बॉन्ड और 2 स्टेप सेल्फ एच सिस्टम्स लाइक क्लियर SC बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट, द एम्बर लाइन शोन इन द इमेज इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट. ये जो एम्बर लाइन दिखाई गई है इमेज के अंदर, ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है? एम्बर लाइन शोज द अमाउंट ऑफ बोन कवरिंग द इम्पैक्टेड टूथ. एम्बर लाइन क्या करती है? अमाउंट ऑफ बोन कवरिंग द इम्पैक्टेड टूथ को दिखाती है. ये सारी जो होती है वो विंटर लाइन या फिर वॉर लाइन के अंदर आती है. ठीक है. इसमें व्हाइट लाइन आती है, एम्बर लाइन आती है और रेड लाइन आती है. व्हाइट लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्लूजल प्लेन ऑफ द मोलर टीथ. जो ऑक्लूजल प्लेन ऑफ द मोलर टीथ है उसके साथ व्हाइट लाइन कॉरस्पॉन्ड करती है. ठीक है. इट इंडिकेट्स द डिफरेंस इन द ऑक्लूजल लेवल ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मोलर. ऑक्लूजल लेवल कितना है सेकंड और थर्ड मोलर का, उसको इंडिकेट करती है व्हाइट लाइन. उसके बाद आती है आपकी एम्बर कलर लाइन. एम्बर कलर लाइन रिप्रेजेंट्स द बोन लेवल. एम्बर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी बोन के लेवल को. इट डिनोट्स द एल्वियोलर बोन कवरिंग इम्पैक्टेड टूथ एंड द पोजिशन ऑफ द टूथ दैट इज नॉट कवर्ड बाय द बोन. कितना पोर्शन ऑफ द टूथ जो है, कितनी जगह तक दांत जो है वो नॉट कवर्ड बाय बोन है. ठीक है. उसको रिप्रेजेंट करती है एम्बर लाइन. ये रिप्रेजेंट कर रही है बोन के लेवल को. ठीक है. कि कितनी एल्वियोलर बोन जो है वो कवर कर रही है इम्पैक्टेड टूथ को एंड द पोर्शन ऑफ द टूथ दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय दैट बोन. ठीक है. ये एम्बर लाइन डिनोट करती है. फिर आती है बात रेड लाइन की. रेड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है हमारी. ठीक है. इट्स अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एम्बर लाइन टू एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एलिवेटर. एक इमेजिनरी लाइन लगती है दैट इज रेड लाइन, जो कि परपेंडिकुलर टू द एम्बर लाइन लगती है टू एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एलिवेटर. इट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द टूथ इन द बोन. कितनी डेप्थ ऑफ द टूथ है इन द बोन. ठीक है. उसको रिप्रेजेंट करती है. एंड द डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड इन रिमूविंग द टूथ. इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोन दैट हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर द एलिवेशन. इफ द लेंथ ऑफ द रेड लाइन इज मोर देन 5 मिलीमीटर देन द एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट. अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा रेड लाइन की लेंथ हो जाए तो एक्सट्रैक्शन को वी टर्म इट एज डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन. फॉर एवरी एडिशनल 1 मिलीमीटर डिफिकल्टी इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स. जितना हम एडिशनल 1 मिलीमीटर इंक्रीज करते जाते हैं तो डिफिकल्टी 3 गुना बढ़ती जाती है इन द एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट, ड्रग इज बीइंग शोन इन द पिक्चर. राइट. ये आपको एक पूरी डोजेज फॉर्म दे रखी है. इसके ऊपर आपको रीड करना है इसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है. इट इज सक्सिनाइल क्लोरीन क्लोराइड इंजेक्शन USP. सक्सिनाइल क्लोरीन क्लोराइड इंजेक्शन है USP. इट्स फॉर इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर यूज. इट इज़ वार्निंग लिखा हुआ है पैरालाइजिंग एजेंट. वार्निंग लिखा हुआ है इसके ऊपर पैरालाइजिंग एजेंट और 10 ml का आपको वायल दे रखा है. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज इट? ये सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है. व्हाट इज इट? इज अ डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. ठीक है. डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स दे वेरी क्लोजली रिजेंबल द नेचुरली अकरिंग न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन and therefore they readily bind to acetylcholine receptors generating a muscle action potential. However, unlike the acetylcholine, they are not metabolized by acetylcholine esterase enzyme.
होते एसिटाइल कोलिन जैसे हैं, काम भी एसिटाइल कोलिन जैसा ही करते हैं, लेकिन ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम से मेटाबोलाइज नहीं होते एंड their concentration in the synaptic cleft in the neuromuscular junction does not fall rapidly, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो इनकी concentration synaptic cleft पे इतनी जल्दी fall नहीं करती है. The result is that there is persistent action of this drug on the receptor and muscle relaxation is there. Alright. Suxamethonium, that is scoline, it is the depolarizing muscle relaxant. इसके बाद आता है सक्सामेथोनियम, दैट इज स्कोलिन, ये होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, जो एग्जांपल है इस ड्रग का. डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स डू नॉट रिक्वायर अ रिवर्सल एजेंट, इनमें कोई रिवर्सल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक प्लस पॉइंट होता है. जैसे बाकी कोई भी एजेंट अगर आप दे रहे हो जो कि पैरालाइज कर रहा है या फिर किसी चीज़ को सुन कर रहा है, तो उसमें आपको रिवर्सल के लिए भी कोई ना कोई ड्रग अपना रखना पड़ता है, ठीक है. बट इसमें सक्सामेथोनियम में आपको डीपोलराइजिंग एजेंट की मसल रिलैक्सेंट ऐसा है कि इसमें ये खुद ही वियर ऑफ कर जाएगा, इसमें आपको कोई भी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. नेक्स्ट हमें 4 इमेजेस दे रखी हैं, ओके, और पूछा हुआ है कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं. देखो चारों इमेजेस जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रही हैं डिफिकल्टी इन द एयरवे मैनेजमेंट, ऑलराइट, एंड दीज कम अंडर मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन. कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है? मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन, ये चीज़ की चारों जो आती हैं, ठीक है. इसमें हमारे पास बेसिक सी चीज़ होती है मल्लम पट्टी टेस्ट. इट्स अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ फेरेंजियल व्यू ऑब्टेन ड्यूरिंग मैक्सिमल माउथ ओपनिंग एंड टंग प्रोट्रूजन. जब आप मैक्सिमम माउथ ओपनिंग करते हो और टंग को बाहर निकालते हो तो आपका कितना पीछे जो स्पेस है वो खाली बच रहा है, वो मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन जो है शो करती है. दिस टेस्ट इज परफॉर्म विद द patient in the sitting position, head in a neutral position and the mouth is wide open and the tongue is protruding to its maximum. Classification is assigned according to the extent and the base of the tongue that is able to mask the visibility of pharyngeal structures into 4 classes. ठीक है. क्लास 1 में हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है मतलब काफ़ी जगह बची होती है. क्लास 1 में आपके पास सॉफ्ट पैलेट, यूविला, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर जो हैं वो विजिबल रहते हैं. दिस इज द क्लास 1, ठीक है. क्लास 1 के बाद आती है क्लास 2. आपके पास सिर्फ सॉफ्ट पैलेट विजिबल है, यूविला विजिबल है एंड फेसेस आर विजिबल, ठीक है. यूविला विजिबल है, फेशियल पिलर्स विजिबल हैं और सॉफ्ट पैलेट विजिबल है. क्लास 3 में आपका सॉफ्ट पैलेट और बेस ऑफ यूविला ही विजिबल रहता है. दिस इज क्लास 3, मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन क्लास 3. क्लास 4 में आपका सॉफ्ट पैलेट विजिबल ही नहीं रहता, पीछे बिल्कुल क्लोजर दिखाई देगा आपको. दिस इज मल्टी पट्टी क्लासिफिकेशन क्लास 4. ये क्लासिफिकेशन आपकी इन्फेक्शंस वगैरह में इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है. जब इन्फेक्शन रहता है या कोई गले का इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है कोई भी, या फेरेंजियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई साइनोसाइटिस का कोई नीचे को मैनिफेस्टेशन आ रहा है, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो दिखाई देती है. ओके, नेक्स्ट द इमेज इज गिवन हियर एंड पूछा है कि ये कौन सी आपकी ट्रीटमेंट टेक्निक है. तो इट इज़ अ पीनैम, दैट इज ट्रीटमेंट प्रोसीजर इज नेज़ोएल्वुलर मोल्डिंग, ठीक है. देखो प्री सर्जिकल नेज़ोएल्वुलर मोल्डिंग होती है. करंटली प्री सर्जिकल नेज़ोएल्वुलर मोल्डिंग इज अ वाइडली यूज्ड ऑर्थोपेडिक टेक्निक फॉर प्री सर्जिकल क्लेफ्ट डिफॉर्मिटी करेक्शन. PNAM is a theory based on that hyaluronic acid content जो होता है वो इन्फेंट के कार्टिलेजन में ज़्यादा होता है, which is making the cartilaginous structure more pliable and plastic, ठीक है. हाइलुरोनिक एसिड की वजह से बाय द एज ऑफ 3 months जो कार्टिलेज है वो कम प्लास्टिसिटी जो है वो शो करना स्टार्ट कर देता है. मतलब स्टार्टिंग जब बर्थ कर रहा होता है तब हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा होता है, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा. अब ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस महीनों में, इन 3 महीनों में हाइलुरोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको हम यूज़ करके कार्टिलेज को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो PNAM कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द नेजल सिमेट्री बाय elongating the columella, bolstering the ala, narrowing the cleft and restoring the alveolar arch form and thus demonstrating फेवरेबल इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स इन द चाइल्ड. जिससे कि बच्चे की जो मतलब कितना फ़र्क पड़ रहा है, देखो इनिशियल टू फाइनल कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है. सो दिस इज व्हाई PNAM इज बीइंग डन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो. यहाँ पे आपको एंटीरियर मैग्जिला दिखाई दे रहा है, उसके पीछे आपने सर्जिकली उसको ओपन कर रखा है पोस्टीरियर मैग्जिला को, ठीक है. सो इट इज़ अ वंडरर प्रोसीजर, WUNDERER प्रोसीजर, ठीक है. द प्रोसीजर इमेज शोज प्रोसीजर फॉर एंटीरियर मैग्जिलरी ऑस्टियोटोमी दैट इज नोन एज वंडरर प्रोसीजर. दिस इमेज शोज ऑस्टियोटोमी वाया द पैलेटल बोन पुट फॉर्थ बाय वंडरर. जो बंदा था उसका नाम था वंडरर, ठीक है. इन 1963 वंडरर WUNDERER advocated the reflection of a palatal flap without fracturing of anterior maxilla. Without fracturing of anterior maxilla वो पैलेटल फ्लैप रेज कर रहा है ताकि वो पोस्टीरियर मैग्जिला की सारी चीज़ को चेंज कर सके या फिर जो भी उसको वहाँ पे प्रोसीजर करना है उसको कर सके. एंड मेंटेनेंस ऑफ द लेबियल ब्लड सप्लाई. डायरेक्ट एक्सेस फॉर द पैलेटल ऑस्टियोटोमी इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक. डायरेक्ट एक्सेस फॉर द पैलेटल ऑस्टियोटोमी इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, स्पेशली इफ द पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ द प्री मैग्जिला मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है. वॉस वुंड, इसके अलावा एक दूसरी टेक्निक होती है दैट इज नोन एज वासमुंड टेक्निक. ये वाली टेक्निक जो थी अभी वंडरर वाली वो ऐसी है, ठीक है. एंटीरियर मैग्जिला पूरा सेपरेट किया है यहाँ पे, इसके नीचे जो भी प्रोसीजर करना है उसको वो करेगा, उसके बाद इसको सील कर देगा,
ठीक है। उसके बाद आता है वॉस वुंड टेक्निक। वॉस वुंड टेक्निक में कंप्लीट टनलिंग ऑफ म्यूकोपेरियोस्टम करी जाती है। देयर इज अ कंप्लीट टनलिंग ऑफ म्यूकोपेरियोस्टम बोथ लेबली एंड पैलेटली थ्रू ट्रू वर्टिकल इंसिजन्स। ठीक है। वॉस वुंड टेक्निक में देखो यहाँ पे अगर आपका मैक्सिला छोटा रह गया है तो उसको आगे लाने के लिए आप वर्टिकल इंसिजन देते हो, ट्रू वर्टिकल इंसिजन देते हो। दिस इज वॉस वुंड टेक्निक। ठीक है। इसमें आप म्यूकोपेरियोस्टम में कंप्लीट टनलिंग करते हो बोथ लेबली एंड पैलेटली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सूचरिंग टेक्निक। ये आपकी सूचरिंग टेक्निक दे रखी है इमेज में, आइडेंटिफाई करनी है। इट इज़ अ वर्टिकल मैट्रेस सूचरिंग टेक्निक। देखो द इमेज शोज फार फार नियर टेक्निक, जिसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रेस सूचरिंग टेक्निक। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग टू डीप वाइडली स्पेस्ड फार बाइट्स एंड टू सुपरफिशियली क्लोज्ड स्पेस्ड नियर बाइट्स with the knot tied on the starting side to align the deep and superficial sutures vertically. The main indication for the use of vertical mattress suture is to evert the skin edges. क्या मेन प्रिंसिपल है कि to evert the skin edges. By incorporating a large amount of tissue within the passage of the suture loops, the technique permits greater closure strength and better distribution of the wound tension. ठीक है, इसको वर्टिकल मैट्रेस सूचर बोलते हैं। फार फार नियर एंड नियर टेक्निक होती है। ठीक है। इसमें मतलब इंडिकेशन कहाँ पे, जहाँ पे वुंड जो है वो इवर्ट कर जाएगा, वुंड की एजेस जो है वो इवर्ट कर जाएंगी, ऐसी कंडीशन में इसको देते हैं। एडवांटेज क्या रहता है, ग्रेटर क्लोजर रहता है, ग्रेटर स्ट्रेंथ रहती है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वुंड की टेंशन की। लेकिन डिसएडवांटेज भी रहता है इसका, क्योंकि आप दूर दूर को मतलब उसको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो और दो आप जो है वो फार नियर बाइट्स ले रहे हो, उसकी वजह से वहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ स्कार है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एज नेक्रोसिस ऑल्सो भी इज देयर। ठीक है। नेक्स्ट, विच नर्व ब्लॉक इज यूज टू एनेस्थाइज द एरियाज दैट इज मार्क्ड इन द येलो इन द इमेज गिवन बिलो। ये येलो में जो मार्क्ड एरिया इट इज ड्यू टू द इंसिसिव नर्व ब्लॉक। ठीक है। इंसिसिव नर्व ब्लॉक हमारे पास देते हैं। द मेंटल नर्व ब्लॉक एनेस्थाइज ओनली द मेंटल नर्व। मेंटल नर्व ब्लॉक अगर देते हैं तो वो सिर्फ मेंटल नर्व को एनेस्थाइज करती है, देयर बाय प्रोवाइडिंग द एनेस्थीसिया टू द बक्कल, म्यूकोजा एंड जिंजाइवा ऑफ द मैंडिबल इन द एंटीरियर टू प्रीमोलर एरिया या फिर एंटीरियर टू द फोरामेन, लोअर लिप, म्यूकोजा एंड स्किन ऑन द सेम साइड। द इंसिसिव नर्व ब्लॉक, इसके अलावा जो इंसिसिव नर्व ब्लॉक होता है वो एनेस्थाइज करता है दोनों इंसिसिव और मेंटल नर्व्स को। इंसिसिव नर्व ब्लॉक दोनों इंसिसिव और मेंटल नर्व को एनेस्थाइज करता है। इन एडिशन देयर इज मतलब सारा ये आगे का एरिया प्लस मैंडिबुलर टीथ प्लस एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन, मैंडिबुलर टीथ एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन, दैट इज इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर विच इज एंटीरियर टू मेंटल फोरामेन, जैसा हमारे को इस में दिखा रखा है। ठीक है। वो पूरे के पूरे एनेस्थाइज हो जाते हैं बाय द इंसिसिव नर्व ब्लॉक। आइडेंटिफाई द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो। ठीक है। तो इस ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस को देख के तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, बट इट्स अ पैलेटल क्लाइन रिट्रैक्टर। इट्स इंडिकेशंस आर प्लेस्ड पैलेटली for distal and buccal movement of the teeth and canines in the arch line needing distalization, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। प्लस एक्टिवेशन इसकी कैसे करते हैं हम, वी कैन ओपन द कॉइल 2 to 3 millimeters at a point of arm emergence. ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज दैट इज गिवन हियर। ठीक है। ये कंपोनेंट के बारे में आपको पता करना है। इट्स अ टी स्प्रिंग। ऑलराइट, क्या चीज़ है, टी स्प्रिंग। टी स्प्रिंग बक्कल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर और कैनाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। बक्कल मूवमेंट ऑफ कैनाइन और प्रीमोलर्स के लिए ये यूज़ किया जाता है टी स्प्रिंग। फीचर्स क्या रहते हैं, टी शेप्ड आर्म रहती है, बोथ एंड्स आर एम्बेडेड इन एक्राइलिक, लूप्स कैन बी एडेड टू बोथ द आर्म्स एंड एक्टिवेशन में क्या रहता है, पुल फ्री एंड ऑफ टी टुवर्ड्स द डिजायर्ड डायरेक्शन। लेबल, नेक्स्ट इसमें एक लेबल वो जैसा अप्लायंस दे रखा है, इसमें ट्यूब्स लगी हुई हैं दोनों साइड पे, लेबल बुक के एक्सटर्नल साइड पे। पूछा ये कौन सा अप्लायंस है, इट इज अ रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर। ऑलराइट, बोज आर द कंपोनेंट्स यूज्ड टू रिट्रैक्ट एंड रिटेन द एंटीरियर टीथ एंड एड इन रिटेंशन ऑफ द अप्लायंस। वायर्स होती है वो 0.5 मिलीमीटर की स्टेनलेस स्टील वायर होती है, प्लस 3 मिलीमीटर की कॉइल होती है, इसमें मीजल टू कैनाइन प्रेजेंट होती है। इट सपोर्ट्स और इट इज सपोर्टेड बाय द स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग। यूज़ क्या है, सीवियर प्रोक्लिनेशन में यूज़ किया जाता है, डर्ट में यूज़ किया जाता है, नीडिंग लाइट फोर्स, जहाँ पे लाइट फोर्स आपकी चाहिए वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। हाईली फ्लेक्सिबल होता है, दीज आर द प्रोज। ठीक है। कौन क्या रहते हैं कि इट इज़ पुअर वर्टिकल स्टेबिलिटी इसकी खराब हो जाती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो। ठीक है। ये ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट जो है दिट इज अ टिप एज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, टिप एज ब्रैकेट बोलते हैं। इन 1986 डॉक्टर Peter C. Kessling introduced a modified version of edgewise bracket by removing two diagonally opposite sections of the mesial and distal ends from the bracket. Diagonally opposite section जो थे mesial और distal end से, उसको remove करके एक bracket बनाया गया by this man Kessling। ठीक है। इसको बोलते थे tip edge bracket। ठीक है। Tip edge bracket was invented to introduce differential tooth movement within an edgewise based bracket system. Edgewise based bracket system के अंदर टिप एज ब्रैकेट जो था उसे इन्वेंट किया था टू इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल टूथ मूवमेंट। एज द नेम सजेस्ट्स
tip edge combines an initial degree of tooth tipping with greatly facilitation of the tooth movement prior to edge-wise precision finishing. ठीक है, मतलब edge-wise की precision finishing के पहले हम tip edge जो है उसे यूज़ करते हैं, ऐसा ये कह रहा है थ्योरी में. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो. ठीक है, ये एक तरह का हमारा फंक्शनल रेगुलेटर अप्लायंस है. राइट, इट्स अ फ्रैंकल 2 अप्लायंस. इट वाज डेवलप्ड बाय रॉल्फ फ्रैंकल इन 1960 जर्मनी. टिश्यू बॉर्न फंक्शनल अप्लायंस है. इट्स अ टिश्यू बॉर्न फंक्शनल अप्लायंस. अनलाइक अदर अप्लायंसेस, इट डज नॉट कॉन्टैक्ट टीथ डायरेक्टली. ये दांतों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता, बल्कि मसल जो है या टिश्यू जो है उनकी फोर्सेस को दांतों के ऊपर पड़ने से रोकता है. ठीक है, इट वर्क्स बाय रीपोजिशनिंग द सॉफ्ट टिश्यूज, चीक्स, लिप्स एंड टंग टू इन्फ्लुएंस द जॉ ग्रोथ एंड टूथ पोजिशन. इट एम्स टू करेक्ट द मसल imbalances and promote the natural skeletal growth in the patient. In Frankel 2 appliance, the labial bow is on the maxilla and the lip pads are placed on the mandible. Alright. Next, identify the type of self-ligating bracket. देखो, ये कलर्ड आपको एक सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है. इसमें ऊपर वो पर्पल कलर का अपने पास ये मशरूम शेप्ड एक ये कोई चीज़ होल्ड करने के लिए बनाया हुआ है. इसी के बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे. राइट, दिस पर्पल कलर जो ये चीज़ है ये इसको बताती है इट इज़ अ स्पीड ब्रैकेट. Speed bracket is self-ligating bracket and it was described by Dr. Hansen. Speed bracket जो था it was described by Dr. Hansen in the year 1973. The speed bracket can be easily identified by its distinctive mushroom-shaped hook. ये mushroom shaped hook से आप इसको identify करते हो. Next, identify the given appliance that is placed here. देखो, इसमें आपके पास ध्यान से देखोगे तो दो आपके पास बैंड लगे हुए हैं. ठीक है, दो बैंड लगे हुए हैं, बाहर को एक वायर दी हुई है और अंदर को एक सेकेंडरी वायर आई है. अंदर को एक सेकेंडरी वायर आई हुई है. ऑलराइट, अंदर को एक सेकेंडरी वायर आ रही है. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्रोजाट अप्लायंस. इट्स अ मैंडिबुलर डिस्टलाइजिंग अप्लायंस. क्या चीज़ है? मैंडिबुलर डिस्टलाइजिंग अप्लायंस है. दो मोलर बैंड सोल्डर होते हैं ऑन द ईदर साइड. ब्लू एलिगॉय और स्टेनलेस स्टील वायर से उसको जोड़ा जाता है. द लिंगुअल आर्च शुड टच एज मेनी एज टीथ हैज पॉसिबल. जितनी भी लिंगुअल आर्च है वो जितने दांत पकड़ सकती है, जितने दांत टच कर सकती है, उतनी वो टच करवाना होती है. इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है फ्रोजाट को? इसमें लिंगुअल आर्च के साथ साथ हमारे पास एक थर्ड वायर भी प्रेजेंट है जो अभी मैं दिखा रहा था. ठीक है, ये थर्ड वायर इसको फ्रोजाट को जो है वो डिटेक्ट करवाने में हेल्प करवाती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन अप्लायंस. ये कौन सा अप्लायंस है हमारे पास? इट्स अ रैपिड मैक्सिलरी एक्सपैंडर और हाइजीनिक रैपिड एक्सपैंडर. इट्स नोन एज हायरैक्स अप्लायंस. दिस अप्लायंस is using special type of screw that is called as hygienic rapid expander और उसको हम Hyrax भी बोलते हैं. These screws have heavy gauge wire extensions that are adapted to follow the palatal contour and soldered onto the bands on premolars and molars. ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन अप्लायंस. देखो, अप्लायंस को देखो, बैंड दो लगे हुए हैं, आगे को हल्का सा रिटेंटिव दिया हुआ, हल्का रिटेंटिव दिया और पीछे यहाँ पे ये नाइटाई वायर दे रखी है. व्हाट इज इट? इट इज अ नाइटाई एक्सपैंडर अप्लायंस. नाइटाई एक्सपेंडर अप्लायंस है. इट वॉज डेवलप्ड बाय वेंडल वी आर्नेडेट. WENDELL वी आर्नेडेट ने इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था. सॉरी, डिस्कवर तो ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो कि पहले से प्रेजेंट हो. ही वॉज डेवलप्ड. It has the ability to produce light continuous pressure on mid-palatal suture while simultaneously uprighting and rotating and distalizing the maxillary first molars. Its central component is made up of thermally activated nitai alloy. Central component is made up of thermally activated nitai alloy. ये जो हमने वायर की बात कर रहे हैं, it is thermally activated nitai alloy. जैसे मुंह की हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है, बाहर तो ठंड है, मुंह में जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है उसके हिसाब से ये जो स्लाइट फोर्स है उससे जो सूचर से उसको एक्सपैंड करता रहता है दोनों साइड के. ठीक है, नाउ इट्स सेंट्रल कंपोनेंट इज मेड ऑफ थर्मली एक्टिवेटेड नाइटाई अलॉय, अभी हमने बात की, एंड द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. Action of the appliance is consequence of nitai shape memory and transition due to temperature effects. Next, identify the chemical that is being used for the test. देखो, यहाँ पे आपने कोई केमिकल डाला है कैविटी के अंदर और उससे बुलबुले उठ रहे हैं. What is it? ठीक है, बुलबुले कहाँ से उठ रहे हैं? सिर्फ कैनाल के ओरिफिस से उठ रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं फॉर द शैम्पेन बबल टेस्ट. क्या करते हैं हम? शैम्पेन बबल टेस्ट यूज़ करते हैं. अलाउइंग द सोडियम हाइपोक्लोराइड दैट इज NaOCl टू रिमेन इन द पल्प चैम्बर दैट मे हेल्प टू रीलोकेट द कैल्सिफाइड रूट कैनाल्स ऑरिफिसेस. टाइनी बबल्स में अपीयर इन द सॉल्यूशन इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑरिफिस. इसको हम बेस्ट कैसे देख पाएंगे? या तो हमारे पास माइक्रोस्कोप हो या फिर हमारे पास 8x या 6x की मैग्नीफिकेशन प्रेजेंट हो. ठीक है, उसी से हमें वो बुलबुले किस एग्जैक्ट पॉइंट से निकल रहे हैं वो पता चलता है. इसको हम बोलते हैं शैम्पेन बबल टेस्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायमीटर ऑफ द डिवाइस दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो. ये आपकी नॉर्मल 3-वे सिरिंज है, उसके आगे आपने एक टिप के साथ कुछ चीज़ लगाई हुई है. ये डायरेक्ट कैनाल में जाने के लिए आपको चीज़ लगाई हुई है. ऑलराइट, व्हाट इज इट? इस टिप का नाम है
irrigation tip. These are smaller irrigation tips with external diameter of 0.32 mm, 30 gauge. ठीक है, इनको हम स्ट्रोपको फ्लेक्सी टिप बोलते हैं, STROPKO फ्लेक्सी टिप्स. ठीक है, these are 30 gauge needles that is fabricated from the nickel titanium to improve the penetration into the curved root canals. ठीक है, 30 gauge की हमारी ये टिप होती है. The external needle diameter is of relevance for the depth of introduction into the root canal and for rigidity of the tip. It's an important consideration for irrigation of the curved canals. Common 27 gauge injection needles have an external diameter of 0.42, most commonly used in endodontics. Commonly हम 27 gauge यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो दिखाई गई है और जो मतलब आप 3 वे के साथ लगाते हो वो स्ट्रॉपको टिप्स होती हैं, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर इज 0.32 मिलीमीटर. 27 का होता है 0.42 मिलीमीटर. 30 गॉज का होता है 0.32 मिलीमीटर. ठीक है, 30 गॉज की आपकी ये टिप होती है.